Praise the Lord to everyone in the name of Jesus. मैं सभी को शुभकामनाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहना चाहूँगी. Thank you for coming online and thank you for joining with all of us through this video. God bless all of you. God be with all of you, all the viewers. Be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Come, let us all, first of all, thank God who gave us this beautiful opportunity to praise and worship His mighty name and to glorify His wonderful name. Glorify Him who gave us this opportunity, this beautiful day to meet all of us. All of you once again. Let us all thank God. Hallelujah. And I would like to thank my Father who gave me this opportunity to be in front of you all, to speak something through the Word of God and to preach the things which I have learned from you, for you people we're learning from you. Hallelujah. This is really a great thing that we people are meeting and talking the oracles of God. Hallelujah. It is really a great and blessed thing for all of us. And I would like to thank my all elders who gave me this opportunity as well. And thank you especially for you people, those who are giving your precious time to watch and to learn something. Hallelujah. It is really a great and blessed thing for all of us. And in the Bible, it is written that it is really a good thing that if we people meet, if we want to speak something, then let us all speak the word of God. Let us all speak as the oracle of God. It is really a good thing for all of us. आइए हम सबसे पहले मैं अपने पिताश्री का और अपने बड़ों जनों का और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिसके ज़रिए हम ये सांसें ले रहे हैं, और जिन्होंने हमें ये सुंदर सा मौका, सुंदर सा एक दिन दिया कि हम सब एक दूसरे से इस वीडियो के माध्यम से मिलें और परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करें. बहुत ही अच्छी और बहुत ही आशीषित बात है ये हम सब के लिए. बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई कुछ बोलना या कहना चाहे तो ऐसी बात करे जैसे कि परमेश्वर की बात हो, यानी परमेश्वर के वचन के द्वारा हो, यानी मसीह के बारे में हो. ऐसा लिखा है. ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए कि हम जब मिलते हैं तो हम लोग परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर की बातों से एक दूसरे से बातचीत करते हैं. बहुत अच्छी बात है. रियली गुड थिंग दैट वी पीपल व्हेन वी मीट वी स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, वी टॉक थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. सो इट इज़ रियली ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. So before starting the program, let us all do a small prayer and we will start the program. तो शुरुआत करने से पहले आइए हम सब एक छोटी सी दुआ करें और इस प्रोग्राम को शुरू करें. Dear Heavenly Father, we thank you for this beautiful hour, beautiful moment you had given us. प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन समय के लिए जो आपने हमें दिया. Father, we pray at this moment for each and everything. We submit everything, the entire things into your hands. And Father, we pray that you bless each and every person, those who are watching this program. और परमेश्वर हम दुआ करते हैं इस वक्त जितनी भी तमाम बातें, तमाम चीज़ें, तमाम हर एक दिक्कत परेशानी को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर हम दुआ करते हैं इस वक्त परमेश्वर, और यह प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको आप आशीषित और उन सब के साथ आप बने रहें. Father God, we pray at this moment as we're going to start this program, you be with us. Father, help us to learn something, to preach something to people. परमेश्वर जिस प्रकार हम इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं, आप हमारी मदद करें कि हम कुछ सीखें और कुछ प्रचार लोगों को कर सके प्रभु आपके बारे में. Lord, help us, for we are nothing and you are the one who does, you are the one, your things which prevails. Father, we thank you. परमेश्वर हम इंसान कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आप जो चाहते हैं प्रभु वह ज़िंदगी में पूरा होता है. परमेश्वर यह लिखा है. Thank you God for everything. We thank you for this beautiful day. Everything we keep into your hands. परमेश्वर हम आपके लिए हर चीज़ का हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु. हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं. एंड फादर, एट दिस मोमेंट आई प्रे दैट यू ब्लेस ईच वन ऑफ अस. और प्रभु इस वक्त मैं दुआ करते हो आप हम सबको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ मांगती हूँ. आमीन. इन द नेम ऑफ जीसस आई आस्क द स्मॉल प्रेयर. आमीन. So come let us all sing a song, praise and worship God. आइए हम सब इस वक्त गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करें. बोलो फिर
go to the Word of God as we have sing the songs and we have praised and worshipped God. It is really good thing for all of us. Hallelujah. आइए हम सब गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना महिमा करी और इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे. हम वचन से कुछ बातों को सीखेंगे. हम ये देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है. Today let us all go to the Word of God at this moment and learn something that what does God wants to talk to us, what He actually want to say to us. Let us all learn this. I would like to keep in front of you all and I would like you all to open the book of Isaiah chapter 41 and if we read from the verse 8 it would be better. आइए हम सब यशाया 41 का 8 से यदि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. Come let us all read it. Let us all listen this carefully what actually we are reading. I hope and I believe that you people are opening your Bibles and you are reading along with me. मुझे आशा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप अपनी बाइबल को खोलकर और मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं. Come let us all read it. But you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, the offering of Abraham, my friend. You whom I took from the ends of the earth and called its farthest corners, saying to you, you are my servant. I have chosen you and not to cast you off. In 10th one it says, fear not, for I am with you, but be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. 11th one it says, behold, all who are incensed against you shall be put to shame and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. Hallelujah. Come let us all read it in Hindi. I hope that you people heard it carefully. आइए हम सब इसको हिंदी में पढ़ें. यशाया 41 का 8 से यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर सा वचन लिखा है. मुझे भरोसा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे. हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं. 10वीं आयत में इस प्रकार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ. मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा. अपने धर्म में दाहिने हाथ में से मैं तुझे संभाले रहूँगा. 11वें आयत में इस प्रकार कहता है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वह सब लज्जित होंगे. हालेलुया. जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वह नष्ट होकर मिट जाएंगे. क्या ही गंभीर बात यहाँ पर लिखी है. आइए हम सब इसके और मनन करते हैं. Come let us all meditate on this word. Hallelujah. Isaiah chapter 41. In this chapter we've several times heard about the one most known verse that God says in the, verse 10 to children of Israel. It says, fear not, for I am with you. So why does it says about that? Fear not. He's saying fear not because we are fearing. Somewhere in our heart we people are fearing. And that's most dangerous things. Dangerous thing which is in our heart. We have to really take it as really deep thing. For it says, fear not. Are you fearing? Are you scared because of your problems? Are you scared because of your sickness? Are you scared for you have no job? Are you scared for you're unemployed? Are you scared for nobody gives you attention? Are you scared for nobody is talking to you? Here God says, fear not, for I am with you. Fear not, for God is with you. Which God? Who is this person who is telling it? Fear not. Who is he to say you? Come let us all read the 8th one again. It says, but you Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, this is the God who says to you, do not fear, for he is the God who have chosen you. For he is the God
who has chosen you. And if He has chosen you, then remember, He's never ever going to forget you. You are always in His sight. Whatever you're doing, it is in front of Him. Whatever you're doing, it is in presence of God. I mean to say, in sight of God. Well, whatever you're doing, it is inside of God. So you need not fear. I mean to say that whatever hard work you're doing today, it is going to pay you. God is going to give you the reward. Are you working hard day and night to earn something? Are you working hard day and night to get something? Are you just putting your mind into something to get something? Are you really depressed, or are you really frustrated for something? Remember one thing, anxiety brings depression. In book of Proverbs it says, do not be anxious for nothing, God says. Do not be anxious for nothing, it says. For the God is the one who takes care, who take care for you. He is the God who is going to look for you. He is the Jehovah Jireh who is going to provide for you. Hallelujah. You do your work, you do your business, you do your job, and God is going to do His job. When Israelites were in front of the Red Sea, what happened? Children of Israel, they were so scared. Our ancestors, they were so scared that they, turned against Moses, the great leader. And they shouted back at him, Moses, why did you brought us over here to die? We were happy as slaves back in Egypt. They were like this. But you know what God says? Moses, tell these people to shut their mouth, and I'm going to do what I have to do. So it means, even there was death in front of them, God had a way for them. And whatever happens, it happens for a good thing. And God is the one who's going to give you the reward. God is the one who's going to look after you. God is the one who's going to protect you. None, nobody in this world is so greater than God. Nobody. For man has, thousands of desires. A human has thousands of desires in his heart, in their heart. But what God wants, it prevails. So, people might be angry with you, people might be cursing you, people might be hating you, people might be dominating you, and there are some haters behind you. Remember, they're not in front of you, they're behind you. I mean to say, for there is one God for you, and you are after your God. And if you do not turn back from the commandment of God, then remember, God is always with you. God is the one who is going to protect you. God is the one who is going to make you successful in everything. Hallelujah. And in 11th one it says, behold who are incensed against you. I mean to say, behold, God says, behold, whoever is against you, remember, he is not going to be on this earth. Which means God is the one who keeps jealous, It is written. So, if somebody is really against you, then remember, he's not against you, he's against God. If somebody is cursing you, then remember, he's not cursing you, they are cursing God. If somebody is hating you, then remember, they're not hating you, they're hating God. And if somebody is trying to dominate you, remember, they are not dominating you, but there is no power which is going to dominate God. So why do you scare? Why are you fearing? What is it which is making you so fearful? Is the problems greater than your God? Are the problems greater than your Almighty God, the one who created you, the one who created this earth? These problems are going to end on this earth. Remember, if you are going to stay with God, you're going to, be with God, abide in His words, then remember there is the crown of life waiting for you. And if you give up, and if you do not, and if you turn back, then remember, there is no reward for you. It would be better that if we turn back from our sins, from our wickedness, and stop being, fearful, and stop fearing from all these kind of worldly things, and turn back to God. Remember, God is with you. Hallelujah. God is the one who is always with you. I hope you understand my words. Today, these problems are there. Today they are. Tomorrow, or for the further days, coming days are no more. The former days are going to be in the past.
nothing is going to come back in the future, for God is with you. If you believe God is with you, then remember He is. For it clearly says, those who strive against you shall be as nothing and shall perish. Shall be as nothing means they shall be no more counted on this earth as in existing thing, which means people will forget them. There would be no, what we say, identity on this world of them. For God is the one who protects for you. For God is the one who guides you. Hallelujah. Believe in Him and He is gonna make prosper you in everything. Whatever you're thinking in God, then remember it is going to prevail. And if you're thinking anything besides God, then remember nothing is going to prevail. For God, you might be having thousands of desire, but what God wants, it prevails. Hallelujah. I hope that you get my point. God is with all of us. Do not fear. God clearly says, do not fear. Are there struggles in front of you? Remember, God is with you. And the struggles are not bigger than your God. Just say to your problem, just say it to your hatred, just say to those people those are dominating you. Just say to them that God is with me. My God is greater than you, is bigger than you. And why do you try to scare me? Why do you try to threaten me? When my God is with you, when my God is with me. Hallelujah. God is with all of us, everywhere He is. Do not fear, for God is with us. Hallelujah. I hope you get my point. Come, let us all read this verse again in Hindi. हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। यशाया 41 का 8 और 9 हमने अभी इस वक्त पढ़ा। हमने यह पढ़ा कि यहाँ पर परमेश्वर इज़राइलियों से कुछ बात कह रहा है। और क्या कह रहा है? आइए हम सब इसको 10वीं आयत में पढ़ें। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन, हालेलुया। कौन है ये जो कहता है आपसे कि मत डर? कौन है ऐसा जो कहता है कि मत डरो, जबकि कोई क्यों कहेगा कि मत डरो? जब आप डरेंगे तभी आपसे कोई कुछ कहेगा कि मत डरो। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं, अपने दिल में, कहीं ना कहीं अपने हृदय में आप उस डर को और उस भय को ला रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे पिताजी एक बात कहते हैं कि शैतान का काम होता है हमें निराशा करना, हमें निराश कर देना। जानबूझकर वो जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, जो प्रॉब्लम वो ला रहा है सामने, जो कठिनाइयाँ ला रही हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन शैतान आपको जानबूझ के निराश कर रहा है। और परमेश्वर का काम है कि आप निराश ना हो, आपको वो हौसला देता रहेगा, वह आपके साथ बना रहेगा। और ये परमेश्वर का काम है। और यहाँ पर परमेश्वर वही कह रहा है, मत डरो। क्या आपके सामने आज ये बीमारियाँ हैं? क्या आपके सामने आज ये दुख है? क्या ये संकट है? याद रखें, ये कल नहीं रहेंगे यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्योंकि परमेश्वर है हम सबके साथ। कौन है ये परमेश्वर जो ऐसा कहता है? आइए हम सब इसको वापस 8वें में पढ़ें। हे मेरे दास इज़राइल, हालेलुया, यानी हम सब। हे मेरे चुने हुए याकूब का परमेश्वर, हालेलुया। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हालेलुया। तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया, पृथ्वी के छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है। पृथ्वी के दूर दूर देशों से बुलाकर कहा कि तू मेरा दास है। ना केवल इंडिया, ना केवल भारत, या ना केवल किसी और देश से नहीं, जितने भी दूर दूर देश हैं उन सब में से बुलाकर कहा गया है। यानी अब इतनी दूर जाने की क्या बात है? हमारे पैदा होने से पहले ही उसने हमें चुन लिया था, अपना नाम, अब हमारा नाम ले लेकर उसने हमें बुला लिया था अपने कार्यों के लिए। तो क्यों डर रहे हैं आप? परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डरो। यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखा है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। इंसान कब सोचता है ये कि
तजा नहीं। यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, हमें तज दिया गया है। यदि हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं, यदि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, चाहे हम जितना दिमाग दौड़ा रहे हैं उतना काम नहीं हो पा रहा है, दिन रात मेहनत करने के बाद भी हम कुछ कमा नहीं पा रहे, दिन रात सब कुछ करने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि हमें शायद परमेश्वर ने तज दिया है। याद रखिए, यदि परमेश्वर ने तजा होता तो हम शायद ज़िंदा नहीं होते, और यदि हमारी सांसें अब तक चल रही हैं तो याद रखना परमेश्वर के पास हमारे लिए एक अनोखी योजना है, और वह योजना हमारे सोच से परे है। एक अद्भुत रीति से वह हमें इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो याद रखना आप उस कार्य के लिए निश्चिंत ठहराए गए हैं। यदि आप आज इन दिक्कत परेशानियों को देखकर यदि सोचते हैं कि अब बस हो गया, अब हमसे नहीं होगा, अब हम जान दे देते, अब बस कुछ नहीं होने वाला, सब मर जाएंगे, सब मिट जाएंगे, यदि आप ऐसे सोचते हैं तो याद रखिए वह जीवन का मुकुट आपके लिए नहीं है। फिर यदि इन समस्याओं, इन दुख भरी दिनों में, यदि इन संकट और दुख के दिनों में यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, these are problematic days if you are with God, you know, in these difficult times if you are facing towards God, if you just gazing at him, यदि आप परमेश्वर को निहार रहे हैं तो याद रखिए God is going to reward you, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा, और परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखा गई है, आइए हम सब इसको पढ़ें। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आप सबके साथ बना हुआ है। गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। परमेश्वर कहता है कि दृढ़ करेगा, यानी कि आप आज निराश हैं, आज आप दिक्कत परेशानी में, आज आप बीमारी में हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। गॉड इज़ विथ यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। 11वें पद में इस प्रकार लिखा है, देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। आज जितने लोग आपसे नफरत करते हैं, आज जितने लोग आपसे गुस्सा है, क्रोधित है, जल रहे हैं, भुग रहे हैं, होने दो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वे सब लज्जित होंगे। याद रखिए, यदि आप ये शब्द भूल जाते हैं, परमेश्वर के बातों को भूल जाते, तो याद रखना आप दिक्कत और संकट में ही रहोगे। यदि परमेश्वर की बातों को मन में रखकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो याद रखना परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा, और वह निश्चय लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। यदि आप इस पर भरोसा रखते हैं। जो दृढ़, हालेलुया। नीचे लिखा है, जो तुझसे झगड़ते हैं, जो दिन बात आपको परेशान करते हैं, उनके मुंह काले हो जाएंगे, वे कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ पे परमेश्वर साफ लिखता है, यानी आपको पता है बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि वह परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आपको याद है ये कहानी, जब इज़राइली लोग मिस्र की गुलामी से चलकर आज़ादी की ओर जा रहे थे, जब वह परमेश्वर की तरफ जा रहे थे, सामने लाल समुंदर था, और वह इतने डर गए थे कि अब हमारे सामने मौत है, पीछे फरो की क्या कहते हैं, सेना है, सोल्जर्स है, आर्मी पीछे है, पूरी सेना हमारे पीछे, सब मार देगा, सब खत्म हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, मिट जाएंगे। जब लोग डर रहे थे, जब पूरा इज़राइल डर रहा था, तब वह सब के सब इतने डर गए थे कि वह वापस मूसा की ओर मुड़ गए, और वह वापस उसके विपरीत में कहने लगे, मूसा तो क्यों हमें यहाँ ले आया, क्या हमें मारने के लिए लेकर आया, हम तो गुलामी में ही सही थे, हम गुलामी में ही सही थे। लोग ये कह रहे थे मूसा से। याद रखिएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मूसा इन लोगों को बोल के वह अपना मुंह चुप रहे, अपना मुंह बंद रखें, और फिर परमेश्वर उनके लिए लड़ता है। परमेश्वर ने वह लाल समुद्र 2 भाग में कर दिया, और इज़राइल के लोग, पूरी इज़राइल की प्रजा उस सूखे पथ पर चल रही थी। इसका क्या तात्पर्य है इस चमत्कार का? कहने का तात्पर्य ये कि चाहे मौत आपके सामने क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर वह आपको बचा लेगा, मरने नहीं देगा, जब तक कि परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती, जब तक कि परमेश्वर के कार्य आपके ज़रिए होते नहीं हैं। याद रखना, परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत रीति से रचा है, अद्भुत योजना के लिए रचा है, और याद रखें वह परमेश्वर आपके साथ है। वह योजना परमेश्वर आपके ज़रिए ज़रूर करेगा, वह योजना परमेश्वर आपके ज़रिए करने वाला है। और यदि आज आप डरते हैं
इतने घबरा जाते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो याद रखना जीवन का मुकुट नहीं मिलने वाला। यदि आप इस दुखद संकट इन दिनों में यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपके साथ हमेशा है और आप जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर की निगरानी में है। यानी कि यदि परमेश्वर हमें भूल जाए तो हम जिंदा नहीं हैं, ये सब जानते हैं। इसी प्रकार आप हमेशा परमेश्वर की नज़रों में हैं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर सदा बनी रहती है। इसीलिए वह आपको हर एक दिक्कत, संकट, परेशानी से बचा लेता है। और कई बार कहीं ना कहीं हम बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स, बहुत बड़े बड़े उन आपातकालीन क्या कहते हैं, बहुत, मेरे कहने का मतलब बिग एक्सीडेंट्स, बिग काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी ऑल बीइंग सेव्ड। हम बहुत बड़े बड़े इतने खतरनाक जानलेवे क्या कहते हैं उसको, accidents which are going to happen when people are really not knowing what is going to happen, but still God saved us. हमें पता भी नहीं होता कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। मौत के घाट चलते चलते भी परमेश्वर हमें बचा लेता और हम ये जान भी नहीं पाते कि अब हुआ क्या था, और हम चल देते हैं आराम से। बहुत बार ऐसा हुआ है आप सभी के साथ, शायद आप नहीं जानते। God is always with you. परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। Do not fear, डरे नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। God is always with you. God bless all of you. परमेश्वर आपके साथ सदा है, परमेश्वर आपके साथ सदा बना रहे। You keep your keep your faith in God and God will bless you. आप अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। God bless all of you through this word. परमेश्वर आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीषित करें। सभी को जय मसीह की। Praise the Lord everyone. In midst of us there is Philip भैया, he will pray for us. हमारे बीच में फिलिप भैया है, वह हमारे लिए दुआ करेंगे, इस वचन के लिए दुआ करेंगे। Come let's all close our eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना हृदय, अपना मन और उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। क्योंकि हम जब निर्बल थे, जब हमारी आशाएं टूट गई थी, जब हम निराशा के अंदर थे, वो एकमात्र परमेश्वर था जिसने हमें स्थिर खड़ा करा, हमारी आशा टूटने नहीं दी। वो हर वक्त ये कहता रहा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर क्यों ताकता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो हमेशा हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। वो नित्य हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। तो हम क्यों ना उस परमेश्वर की जय जयकार करें। हम क्यों उस परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं, क्यों हम उस परमेश्वर से अपनी दूरी को बढ़ाते जा रहे हैं। है प्रभु, हमारे अपराधों को तुम माफ़ कर। हम जो तुझे भूलते जा रहे हैं मेरे खुदावन यहोवा, हमें तो अपनी नज़दीकी में लेकर आ मेरे प्रभु। हाँ परमेश्वर, जो आपके और हमारे बीच की जो दूरियां, जो दरारें बढ़ती जा रही है परमेश्वर, उस दरारों को तू दूर कर मेरे प्रभु। परमेश्वर, इस संसार की दलदल के अंदर हम इतना फंस चुके हैं मेरे खुदावन यहोवा, हम तुझे भूल गए प्रभु। तो हमेशा ये कहता रहा, ओ मेरी पुत्री, ओ मेरे पुत्र, तू मेरे पास तो आ, मैं तेरे बोझ को हटा दूंगा। पर प्रभु हम समझ नहीं पाए मेरे प्रभु। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमारे हृदय को छुआ है मेरे प्रभु। हम ये भूल गए थे कि परमेश्वर तू हमारे संग था मेरा प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम ये भूल गए थे कि हमारे खुदावन यहोवा कि हम राह से भटक रहे हैं मेरे प्रभु। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु हमारे हृदय के छूने के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। अपनी महिमा, अपनी सामर्थ और अपनी अभिषेक हमारे जीवनों में रख प्रभु। हाँ परमेश्वर, अपनी अनॉइंटिंग हमारे जीवनों में रख मेरे खुदावन यहोवा। हम तेरे वचन के चाल चलन के हिसाब से चलने पाए मेरे खुदावन यहोवा। तो सदा हमारे संग रहे मेरे प्रभु। मैं उन तमाम नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन यहोवा, तमाम लीडरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपना ज्ञान, अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ और अपना विजडम तू उन्हें दे मेरे खुदावन यहोवा, ताकि वो इस देश को और उन्नति की ओर लेकर जाने पाए मेरे प्रभु। तो सहायता कर मेरे खुदावन यहोवा। एक छोटी सी प्रार्थना तेरे हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन। Amen. God be with all of us. God bless all of you. We will be live according to the same timing tomorrow also. हम इसी समय पर कल भी हम लाइव रहेंगे और हमें आशा भरोसा है कि आप सब हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, परमेश्वर की महिमा और आराधना प्रार्थना करेंगे। I hope and believe that you people will join us again and praise and worship God. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord everyone.